Hello children, I hope you all are good. Today we are going to start one new chapter of SST, that is Major Developments in the 18th Century. So in this chapter basically we are going to study about the different changes and development, different procedures whatever happened during the 18th century in the world. So let's start the chapter with the three period of the history. You know beta, world history has been divided into three main periods. One is known as ancient history, another is the medieval, and the last one is the modern history. You know, these three periods are having the different qualities and characteristics. That's why we have classified the history into the three period. When we are talking about the ancient history, so we are talking about the early human beings lives and the different civilization, like Indus Valley civilization आपकी हुई थी, then after that Egyptian civilization, Greek, Roman civilization, etc. Okay, then medieval period में when we are entering, so that is around your ruling power, when monarchical system was there and the people were subjugated as a subject. तो राजा जो है रूल ओवर करता था प्रजा के ऊपर और राजा का शासन चलता था. देन ग्रेजुअली we move to the modern era when the monarchical system almost end and the power now came in the hand of the people. Means the different other forms of the ruling power has been emerged. So overall we can say that yes, ancient, medieval and modern, these three categories enable us to understand about the history period. So first of all we are going to start up with the major developments of contemporary world. देखिए बेटा, इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का जो मेडिवल पीरियड था दैट केम टू एन एंड विद द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर एंड आफ्टर दैट द मॉडर्न पीरियड हैज बीन स्टार्टेड. And remarkable changes were occurring in the world, whether it is India, whether it's the other countries of the Europe or other parts of the world. There has been the different development, changes, even in the different field, whether it's science, arts or आपका politics, society, everywhere we can see the major development in the world. सो इंडिया की अगर बात करते हैं, बीइंग इंडिया वॉज द कॉलोनी ऑफ द इंग्लैंड, यू नो वेरी वेल, ठीक है. इतना कॉलोनी होने के बाद आफ्टर स्पेंडिंग सो मैनी ईयर इन द स्लेवरी, if you are looking India at a present scenario, you will find that yes, India has developed a lot in every field. So we feel very proud कि अरे वाह, आज इंडिया कहाँ पे है, कहाँ हम थे और कहाँ आज हम पहुँच गए हैं. अब before discussing the Indian society, there were tremendous change in the European society also. When we are talking about the modern era, modern time period, तो बेटा यूरोप में भी बहुत ज़्यादा changes हुए हैं. Medieval period of the European history was featured by the series of socio and political transformation. बहुत ज़्यादा changes step by step जो है यूरोपियन हिस्ट्री में होते रहे हैं. Like India, world also and in Europe also, in every field, whether it's the art, science, literature, politics, mathematics, everywhere we get the different changes in the European society. अच्छा, the crusade, the holy wars जिसे हम कहते हैं, between the Christians and the Muslims had far-reaching consequences on the European feudal society. क्योंकि देखो क्रिश्चियनिटी में और जब इस्लामिक के बीच में ये होली वॉर स्टार्ट हुई थी रिगार्डिंग देयर रिलीजन, आफ्टर देयर वाज अ ट्रिमेंडस चेंज. जो फ्यूडल सोसाइटी थी ना बेटा, जमींदारी सिस्टम, जहाँ लॉर्ड होते थे, लैंड का पूरा ओनरशिप लॉर्ड के पास होता था और जो लैंड लॉर्ड होते थे वो जो है फार्मर से, पीजेंट से काम करवाते थे. सो उस फ्यूडल सोसाइटी में जो है डिफरेंट ही आ गया, चेंजेस ही आ गए. The most important impact of these holy war were on the trade. ट्रेड में भी बहुत सारे चेंजेस आए and the trade resulted from the contact between the Europe and the Islamic Empire. लड़ाई तो होती रही लेकिन एक तरफ जो है ट्रेड रिलेशन भी हमारे बढ़ते गए थे. तो ये भी एक मेजर चेंजेस आया. एंड यू नो मेजर रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड वाज द इमर्जेंस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रेड. When I am talking about independent trade networking containing artisans, merchants
and the residing middle class. Means everyone was now interlinking with each other. डिफरेंट टाइप का ऑफ आर्टिजन्स होते हैं ना, अलग अलग तरीके का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट वाले होते हैं, पेंटर्स होते हैं, आपके ब्लैक स्मिथ होते हैं, गोल्ड स्मिथ होते हैं. सो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिजन्स हो गए. मर्चेंट्स जो इधर से उधर ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कर रहे हैं, स्पाइसेस का, गोल्ड का, अदर मेटल्स का और अदर थिंग्स का. एंड मिडल क्लास जो धीरे धीरे राइज अप हो रही थी, आपके और हमारे जैसे लोग, दोज हु आर नॉट वेरी रिच, दोज हु आर नॉट वेरी पुअर. सो मिडिल क्लास का राइज अप भी हो रहा था. सो ये इंटरलिंकिंग शुरू हो गया था मॉडर्न एरा में. नाउ बिफोर डिस्कसिंग द मॉडर्न एरा, एक और स्टेप आपको जानना ज़रूरी है, दैट इज़ द रेनेसा. ये टर्म्स आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मिडल एजेस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मिडल एज बेटा, इट स्टार्टेड फ्रॉम द 400 AD टू lasted till 1500 AD. Okay, so this middle ages ended in Europe with the growth of Renaissance. अब ये मिडल एज का एंड रेनेसा के ग्रोथ से कैसे हुआ? रेनेसा मतलब होता है बेटा रीबर्थ, हम कहते हैं पुनर्जन्म हो गया. मीन्स द पीरियड, द टाइम, द एरा व्हेन द पीपल स्टार्टेड टू थिंक, started to questioning on the authority rather than following them blindfold. जब आप किसी भी बात पे लॉजिकल आंसर ढूंढते हो, क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर देते हो, तब हम उसे कहते हैं रीबर्थ पीरियड है, यानी कि रेनेसा पीरियड है. और ये जो है बेटा यूरोप में स्टार्ट हुआ था. यूरोप का जो फ्लोरेंस सिटी है ना, वहाँ से ये रेनेसा पीरियड स्टार्ट हुआ था. दैट विच सिग्निफाइज रीबर्थ ऑल्सो. एज सच इट सॉ द रीबर्थ ऑफ क्लासिकल थीम्स, आइडियाज दैट हैड लॉन्ग रिमेन्ड डॉर्मेंट इन यूरोप. अब जो पुराने आइडियाज़ चले आ रहे हैं, अब उन आइडियाज़ पे अगर लोग क्वेश्चनिंग करने लगे, क्यों, हम क्यों माने, ऐसा कैसे हुआ, इसका आंसर दीजिए, तो भाई क्या है, नाउ द पीपल स्टार्टेड टू थिंक, रीजनिंग, लॉजिकल, साइंस, that is emerged, and that's why it is known as Renaissance. So in medieval Europe, the church permitted very little freedom of thought to the individual. अभी होता क्या था, सबको आज़ादी थी नहीं. चर्च जो है वो अथॉरिटी में होते थे, या राजा लोग वो अथॉरिटी में होते थे. लोगों के पास जो है आज़ादी बहुत कम होती थी. अभी क्या हो, हमें अगर आज़ादी कम मिल रही है, टोटल की टोटल अथॉरिटी चर्च के पास है. सो दिस टाइप ऑफ सप्रेस्ड इन्वायरमेंट मोटिवेटेड सेवरल पीपल इन यूरोप टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स एंड टू क्वेश्चन ऑन द अथॉरिटी. जब बार बार बेटा हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता है, हमें कुचला जाता है, हमें कोई फ्रीडम नहीं मिलती है, तो हमें भी लगता है वाई वी आर लाइक दैट, वाई द अदर पर्सन इज enjoying द लॉट्स ऑफ राइट्स. तो जब ये वाई आ गया ना, इट मीन्स वी आर स्टार्टेड टू questioning to the authority. So this upsurge of public emotion to advance human knowledge was accelerated by the great person Gutenberg. और ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि जॉन गुटनबर्ग जो जर्मनी के रहने वाले थे बेटा, ही इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस. पहले क्या होता था, मैन्यूस्क्रिप्ट होती थी, हैंड रिटन बुक जो है वो आसानी से हर जगह नहीं पहुंच पाती थी. लेकिन जैसे ही जॉन गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट कर दिया, आफ्टर दैट बुक्स स्टार्टेड टू प्रिंट in a large quantity, in a large number, and that's why it has been written कि जॉन गुटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की वजह से ये जो नॉलेज थी वो एक्सिलरेटेड होते गई, आगे बढ़ती गई. एंड दिस इफेक्टेड ग्रेजुअली एंड इरोडेड द चर्च होल्ड ओवर लिटरेसी. जो चर्च का पूरा अथॉरिटी थी ना, उस पे अब क्वेश्चनिंग लोग करने लग गए, क्योंकि जॉन गुटनबर्ग ने जब अपने प्रिंटिंग प्रेस से बाइबल प्रेस जो प्रिंट की, उसके बाद लोगों ने स्टार्ट किया टू रीड एंड दे केम टू नो व्हाट एग्जैक्टली रिटन इन द बाइबल. बाइबल में कहीं भी इनइक्वालिटी की बात ही नहीं की गई है. बाइबल took a year to produce. A mechanical press could churn out Bibles at the rate of one each day. Means now the people started to read the Bible, the true story, the true messages had been given in the Bible. Everyone is equal in the society. No one can enjoy the complete authority or the power. So soon the monks and the privileged aristocracy,
they lost their monopoly. क्योंकि अब जो इन्होंने क्या रखा था कि जो हमने जो कह दिया वही है, वही गॉड ने लिखा है, वही गॉड ने कहा है, और हम आंख बंद करके मानते थे. लेकिन अब प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से हमने पढ़ना शुरू कर दिया, और जब हमने पढ़ा तो अरे भैया हमें भी राइट्स मिले हुए हैं. एंड दैट्स वाई जो नॉलेज और लिटरेसी पे इनकी मोनोपोली थी ना, चर्च की अथॉरिटी, वो धीरे धीरे फिनिश होना स्टार्ट हो गई. So that was a good example of John Gutenberg printing press, which gave the boost to the Renaissance period. Okay. Moreover, we call this new age as the Renaissance. Why? The period saw the development of the new stage in art also. Not only our thinking power बेटा, art में भी हमने changes देखे, development देखे. Glorifying the human body while promoting the art to the heights never scaled before the Renaissance. Geniuses underline this. क्योंकि देखो बेटा, Renaissance जब आया ना, अब क्या है, लोग फ्री माइंड से सोचने लग गए. अब वो अपने जो उनके थॉट प्रोसेस थे, जो उनकी इमेजिनेशन थी, दे स्टार्टेड टू कल्टिवेट इट एंड टू शो इट इन देयर आर्ट फॉर्म्स. Now, biblical truth that God made man to rule the earth. It was implied that man was God's representative on earth, and no one had any business to curtail another's right. जब बाइबल में ये मेंशन कर दिया गया that everybody is equal, nobody is having a right to snatch another one right, तो लोगों को ये लगने लगा we also equal, we can also become the ruler. And बेटा, some of the great artists of this Renaissance period are Michelangelo. You must have heard the name of Michelangelo, and moreover you must have heard about the Leonardo, and then Rubens, and then Vermeer, and then Raphael, etc. So these people, they gave their thought a very well representation. Leonardo da Vinci is very famous for Mona Lisa also, है ना? Now, after the Renaissance period, there was the different changes and development in the sea voyages. When I am talking about the sea voyages, मतलब समुद्री यात्रा. Okay, so the Renaissance period also experienced the great sea voyages of exploration and discovery, the new sea routes to the different countries. और जब हम different countries के sea route ढूंढने लगे, it means now we are going to connect with the different parts of the world and different people who are living in the different areas. अच्छा, ये sea voyages possible कैसे हुई? When there was the invention of the Marnier's compass. भाई वो भी तो ज़रूरी है. नॉर्मल शिप से वोयाज करना बहुत मुश्किल था, तो थोड़ा सा डेवलपमेंट यहाँ भी हुआ टेक्नोलॉजी में. मार्नियर्स कंपास इन्वेंट हुआ. देन इम्प्रूवमेंट आई कार्टोग्राफी में. कार्टोग्राफी मीन्स द आर्ट ऑफ मेकिंग द मैप ड्राइंग करनी आ गई, पर्टिकुलर किस डायरेक्शन में कौन सी जगह है. एंड देन इनोवेशन इन द शिप बिल्डिंग ऑल्सो. So when these things developed and improved ना, the sea voyages has been started rapidly. और sea voyages की वजह से yes, we are unable to connect with the other part of the world, but fairly safe. And also भाई sea voyages देखो difficult होती है और safe तो बहुत कम होती है, but yes, इस इन्वेंशन की वजह से अब थोड़ा सा safe sea voyages होने लग गई थी. European merchants came to revive their linguistic business and then liberally supported the explorer. ये एक अच्छी बात थी कि जो यूरोपियन मर्चेंट्स थे ना, they invested a lot in the sea voyages and encourages the merchant to do the trade with the other parts of the world. तो इससे ये भी एक बेनिफिट हमें मिला. एंड दीज वॉयेजेस लेड टू द डिस्कवरी ऑफ नॉट ओनली द न्यू रूट्स बट द न्यू लैंड ऑल्सो. और देखो, जब समुद्री यात्रा हुई, हमने न्यू एरिया डिस्कवर की, तो इसका मतलब उस एरिया को हम कैप्चर भी कर सकते हैं या उसे यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और ऐसा हुआ भी. इन 1492 कोलंबस हैज़ डिस्कवर्ड द अमेरिका. ये आपको याद रखना है. 1492 कोलंबस, and Columbus has discovered the America. And the another Portuguese sailor the whose name was the Vasco da Gama, who had discovered the new sea route to India in 1498. ये वन मार्कर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो प्लीज लर्न करिए इन टर्म्स को. Then with the discovery of these new sea routes, the new trade routes also developed.
with the Europe and the Asian country and the America. Europe saw things with a new excitement, experienced massive expansion in the trade. As a consequence thereof, trade companies flourished in the 17th century and the East India Company, basically when I am talking about East India Company, तो बेटा 2 East India Company came into the Indian economy. One is the English East India Company, another was the French East India Company also. Means not only the one country, the other countries of the Europe came to India for the trade purpose. Okay, 17th century में जब ईस्ट इंडिया कंपनी फ्लोरिश होना स्टार्ट हो गई, so it was such a company that set up trading outpost in the several countries also, not only India, the other countries of Asia जो थी वहाँ पे भी इन्होंने अपने ट्रेडिंग आउटपोस्ट या आप कह सकते हो फैक्ट्रीज जो हैं वो डेवलप करनी स्टार्ट कर दी. तो सी रूट्स ने कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ को नए लैंड भी दे दिए उन्हें उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए. नाउ मूविंग टू द रिफॉर्मेशन. रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मीन्स इम्प्रूवमेंट समवेयर. ओके, see, Renaissance played a direct role in igniting the reformation. सुधार तो तभी हुआ ना जब रेनेसां पीरियड आया और डायरेक्टली हमने जो है क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, रीजनिंग, लर्निंग, एवरीथिंग. तो उससे क्या होगा? रिफॉर्म होगा, सोसाइटी में कुछ नए चेंजेस आएंगे, अपलिफ्टमेंट होगा सोसाइटी का. सो द रेनेसां प्रोवाइडेड अ मैसिव फ्लिप टू द लेवल ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी, while emphasizing the study of the ancient classic also. ये एक अच्छी बात थी. जब ये रिफॉर्मेशन हो रहा था, ये चेंजेस, ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपलिफ्टमेंट हो रहा था बेटा, सो रेनेसां एक बात ज़रूर फोकस कर रहा था कि एजुकेशन तो लेनी है, लिटरेसी रेट को तो बढ़ाना है, बट साथ साथ अपने जो एंशियंट कल्चर हैं, अपनी जो ट्रेडिशनल रूट्स हैं, उनको भी पढ़ना है और समझना है. सो दिस सपोर्टेड द पीपल टू रेज देयर वॉइस अगेंस्ट द करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द चर्च. And this movement started as an attempt to reform the Catholic Church. अब क्या हुआ? जब क्वेश्चनिंग हो गई बहुत ज़्यादा और मूवमेंट स्टार्ट हो गए अगेंस्ट कैथोलिक चर्च पे, तो ये मूवमेंट जो है धीरे धीरे एक ऐसा था कि कैथोलिक चर्च में शायद कुछ इम्प्रूवमेंट हो जाएगी. तो हुआ क्या? दिस रिफॉर्मेशन मूवमेंट यू कैन से इट स्टार्टेड इन 1517 अंडर द लीडरशिप ऑफ Martin Luther. Martin Luther belonged to the Germany. Okay, when he called for reopening of the debate on the sale of indulgence, he led the Reformation from the front, which divided the Christianity into 2 sects बेटा. क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने क्या किया बेटा, उन्होंने जब बाइबल की अराउंड 90 थीसिस आप कह सकते हो, ही नेल आउट डायरेक्टली टू द मेन चर्च का बोर्ड होता है ना, उस पर जाके उन्होंने लगा दिया. अभी बहुत सारे लोग उसे पढ़ सकते थे, उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया, फिर उन्हें लगा कि भैया जो बाइबल में लिखा है एक्चुअली वो तो चर्च हमें बता ही नहीं रहा, बाइबल में तो कहीं पे भी डिफ्रेंशिएशन गिवन ही नहीं है, वहाँ तो सबको फ्रीडम दी हुई है. तो इस तरीके से लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ने लग गए और ग्रेजुअली दिस रिफॉर्मेशन टर्न इनटू द रिफॉर्मेशन मूवमेंट. और उसका रिजल्ट क्या निकला कि क्रिश्चियनिटी जो थी इट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. वन इज नोन एज द कैथोलिक who believed in the spiritual and temporal hegemony. Okay, that is known as Catholic, जो पहला old tradition follow कर रहे हैं of the Pope. रोम जो है ना, रोम मेन सेंटर माना गया है, तो रोम के जो पॉप जो भी कह देते हैं उसी को फॉलो करते हैं, that is the Catholic. And the other branch, other sect was the Protestant. Protestant, those who believed in the form of Christian faith and practice that sprang from the Reformation. With the passage of time, gradual change में वो believe करते हैं, Reformation में believe करते हैं, that is the Protestant. So in this way, you can say the Renaissance gave the birth to the Reformation movement, and Reformation movement gave the birth to the division of the 2 branches of Christianity. Now moving to the next step, that is the Industrial Revolution. ये भी एक अलग डेवलपमेंट हुआ हमारे मॉडर्न एरा में. ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी जो क्या था, द मैनुअल लेबर, इट वाज बेस्ड
इकोनॉमी ऑफ इंग्लैंड। मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन जैसे जैसे थोड़ी थोड़ी मशीनों का इन्वेंशन होना स्टार्ट हुआ ना, इट स्विच्ड ओवर। और क्या हुआ, नाउ मैनुअल लेबर से शिफ्ट होना शुरू हो गया मशीन लेबर पे, यानी नाउ द मोस्ट ऑफ द टास्क डन बाय द मशीनरी, और it resulted into the industrial progress. Now it started with the mechanization of the textile supplied by the peasants family with the raw material and gathered the finished good. पहले यही होता था इंग्लैंड की सोसाइटी में ना, कि रॉ मटेरियल दे दिया और उन वीवर्स ने वीव करके दे दिया, पूरा का पूरा अपना कपड़ा बना के दे दिया, और फिनिश गुड को लाके मर्चेंट ने बेच दिया मार्केट में। बट अभी क्या होने लग गया कि अब मशीनरी आनी शुरू हो गई। अब ये मशीनरी आई तो लेबर का जो डिमांड थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई। So thus by the end of 18th century the richer of the merchant established factories. अब उन्होंने फैक्ट्री बनानी स्टार्ट कर दी कि why to move to the village area, भाई पहले गांव जाओ, गांव के लोगों को जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करो, फिर फिनिश गुड लेकर आओ, फिर बेचो। अब उन्होंने अपने आसपास नियर बाय एरिया में फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, जहाँ पे उन्होंने मशीनरीज को इंस्टॉल कर दिया, एंड नाउ स्टार्टेड टू मेक द मास प्रोडक्शन। क्योंकि पहले तो जितने लोग थे उनसे काम करवाते थे, अब मशीनरी से तो आपका ज़्यादा लेवल पे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा था, तो मास मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना। Now the machine made goods started as a mass production. This transfer from manual system to the machinery system is known as industrial revolution. जब मैन से हम मशीन पे शिफ्ट हो गए, so this process is known as industrial revolution. Further there were many more machinery has been invented, like electricity हो गया आपका, वो आ गई, then increased electricity हुआ, then आप ये देख रहे हो ये स्पिनिंग जेनी है, ये जो आपको पिक्चर दे रही है ये आपका स्पिनिंग जेनी है। तो इस तरीके की जो मशीनरी इन्वेंट हुई उसकी वजह से प्रोडक्शन भी अच्छा हुआ और प्रॉफिट भी अच्छा होने लगा। Now see, कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द फ्यूचर कोर्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि मशीनरी ने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्यूचर को हमारे डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। इंग्लैंड बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप द फैक्ट्री सिस्टम वेयर द मशीन हैज़ बीन इन्वॉल्व। आपको ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट फैक्ट्री सिस्टम जहाँ पे मशीन इंस्टॉल होना स्टार्ट हुई वो इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। The applications of the machines first stated in England, and even the invention of the spinning jenny, which I have shown you in the previous page, a new type of loom and steam power vastly increases the mechanized production of cotton cloth in England. स्पिनिंग जेनी आने के बाद तो बेटा बहुत तेज़ी से इनका प्रोडक्शन बढ़ गया, स्पेशली जो कॉटन टेक्सटाइल था ना वो बढ़ गया। हालांकि इसका जो प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि जो लेबर थे अब वो अनएम्प्लॉयड हो गए थे, तो इस मशीन को आसानी से लोगों ने वेलकम नहीं किया था क्योंकि उनका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था। बट येस ऑफ कोर्स ग्रेजुअली जब दूसरी इंडस्ट्रीज स्टार्ट हुई तो लोगों को अदर इंडस्ट्रीज में काम मिलना शुरू हो गया। So we can say it laid down the foundation of the industrial revolution that began in England and spread across the world and continues at present under the label of industrial development। और आज तक हो रहा है इंडस्ट्री में। आप देखो डे बाय डे कोई नई मशीन कोई नई टेक्नोलॉजी जो है इंट्रोड्यूस होती जा रही है, तो हम कहते हैं भैया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। When we are talking about the changes in the modern era, so there is a need to discuss about the American War of Independence also. So let's start the story of this war. North America, अगर आप देखोगे ना बेटा, there was a big event was unraveling in the 13th British colonies. क्या हुआ, नॉर्थ अमेरिका में ब्रिटिशर्स ने 13 कॉलोनी मतलब 13 एरियाज को कैप्चर करके अपनी कॉलोनीज बना रखा था, while the Europe was occupied with handling the problems caused by the internal conflicts. So बेटा एक तरफ तो ब्रिटिशर्स कॉलोनी बन रही है नॉर्थ अमेरिका में 13 कॉलोनीज, एंड दूसरी तरफ अगर आप देखोगे there were several problem emerged in the Europe, their internal conflicts also. Now what happened? This revolted against the British rule over the issue of taxation against representation. इनके ऊपर ही प्रेशर पड़ने लग गया, and the colonies were taxed
बट दे वर नॉट गिवन एनी डिसीजन पावर। अभी ये कॉलोनीज ये बोलने लग गई कि आप हमसे टैक्स लिए जा रहे हो, बट व्हाट यू पीपल आर डूइंग फॉर आवर डेवलपमेंट, या व्हाट यू पीपल आर गिविंग टू अस, यू जस्ट यूटिलाइजिंग, एक्सप्लॉइटिंग आवर रिसोर्सेज and increasing tax, our living standard is going to be down and you are enjoying the luxurious life. So ये colonies में protest start हो गया. Now what happened? The colonies were taxed and they said that they are not ready to pay more tax. Most of the people settled in these colonies had arrived from the Europe, but they were deprived of their rights of the representation that the people living in England enjoyed. अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि यूरोप से ही आए थे, यहाँ सेटल हो गए थे. Now these people are saying that we people are providing you or giving you the high tax, but we are not enjoying anything, any rights. But the European people, exactly those who are living in the Europe, they are enjoying several rights. तो भैया being a Europe हमें क्या दे रहे हैं आप? हम भी तो यूरोपियन हैं. अगर हम यहाँ सेटल्ड हो गए तो आप हमें एक्सप्लॉइट करोगे क्या? और जो यूरोपियन यूरोप में रह रहे हैं, सो दे आर एंजॉइंग एवरीथिंग. तो इस बात पे जो है कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया. द रिवोल्यूशनरी एरा स्टार्टेड इन 1763 एंड ऑन जुलाई 4, 1776 द कॉलोनीज एडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. फाइनली लड़ते लड़ते इन्होंने अपने आप को डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे अडॉप्टेड. इन 1789 यूनाइटेड स्टेट्स अडॉप्टेड अ रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिगिन द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. अपने आप को उन्होंने आज़ाद डिक्लेयर कर दिया कि भैया अब हम आज़ाद हैं, बहुत हो गया. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना लिख दिया. Now the American Revolution was important in two ways. हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे? दो नज़रियों से आप इसे देखिए. First, it drove the British Parliament to follow liberal policies towards their colonies. भाई इस रेवोल्यूशन ने कहीं ना कहीं उन्हें कंपेल कर दिया कि wherever you people are making your colonies, please make the liberal policies. Not over-exploited the resource of that particular colony. Don't make them slave. उनके लिए भी काम करिए आप. And secondly, it motivated the revolutionary forces of other British colonies to liberate themselves from the clutches of the British. दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया? इन्होंने अदर कॉलोनीज को मोटिवेट कर दिया, लाइक इंडिया है ना. ज्योतिबा फुले ने बुक लिखी थी एक गुलामगिरी, उसमें उन्होंने अमेरिकन रेवोल्यूशन की बात करी थी. तो इन्होंने अदर कंट्रीज जो कि ब्रिटिशर्स की गुलाम थी उनको मोटिवेट कर दिया कि आप भी प्रोटेस्ट करें और अपना इंडिपेंडेंस गेन करें. तो दैट्स व्हाई इट इज़ हैविंग द सिग्निफिकेंस. अब हम बात करते हैं बेटा द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अमेरिकन रेवोल्यूशन ने तो वे दे दिया, फ्रेंच रेवोल्यूशन की भी अपनी एक सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री में. By the end of 18th century, this another revolution took place in France. It had far-reaching effect on the world event. फ्रेंच रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पूरे वर्ल्ड में. एट दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी कंसिस्टेड ऑफ 3 layers. 3 states होते थे बेटा, ठीक है. क्लर्जी, सबसे टॉप पे क्लर्जी होते थे, ठीक है. देन नोबेलिटी आपके, एंड देन कॉमनर्स. तो इस तरीके से आपके 3 स्टेट्स में फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी. अब ये क्या होता था, इसमें सबसे ऊपर आपके फादर, वो पॉप चर्च अथॉरिटी आ गई. फिर आपके जो मोनार्क हैं वो आ गए, पूरे नोबल फैमिली आ गई. एंड देन कॉमनर्स, मतलब कि आपके 3rd स्टेट में सारे लोकल पीपल आ गए, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो टीचर हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो फार्मर हैं, पीजेंट्स हैं, एवरीवन इज इन द 3rd स्टेट. In addition to the royal family, wealth was concentrated in the hand of merchants and nobles. ये भी था कि मर्चेंट्स और नोबल्स जो मंत्री होते थे ना, दे आर ऑल्सो एंजॉइंग सब स्पेशल राइट्स एंड द ट्रेजरी ऑल्सो. तो ओवरऑल अगर आप देखो फ्रेंच सोसाइटी, इसका जो डिवीजन है, क्या ये करेक्ट है भाई? 3 स्टेट्स में डिवाइड है, पर इसमें गलती क्या थी? गलती ये थी बेटा कि फर्स्ट 2 स्टेट्स जो आपकी नोबेलिटी और क्लर्जी थी ना, दे वर एंजॉइंग द ऑल पावर, दे वर हैविंग ऑल राइट्स, दे वर फ्री फ्रॉम टैक्सेशन. And the 3rd state, the commoners,
they had to bear the heavy taxation. मतलब ये थर्ड स्टेट सारा काम कर रहा था, इन्हीं को सारे टैक्स देने पड़ रहे थे, और एंजॉय कौन कर रहा था? फर्स्ट और सेकेंड स्टेट. दे डिडंट नीड टू पे एनी टैक्स. और इसकी वजह से एंगर ग्रो होना स्टार्ट हो गया. द लीडर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली. उन्होंने बोला भाई बहुत हो गया, काम करने वाले हम और टैक्स भी हमसे लिया जा रहा है. और अच्छा, कहीं भी कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना होता था ना, तो कहता था देखो जी वोटिंग है. राजा भी ऐसे बोलता था, हम तो वोट कराएंगे. अच्छा, अच्छी बात है, वोट करा लो, क्योंकि थर्ड स्टेट में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, ऑटोमेटिकली उनके फेवर में जाएगा. बट वो लास्ट में क्या कहता था? नो 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 नो, एवरी स्टेट इज हैविंग वन वोट. यानी थर्ड स्टेट जिसमें कॉमन लोग आ रहे हैं उनका भी वन वोट गिना जाएगा. तो दो तो ऑलरेडी पावर को एंजॉय कर रहे हैं, तो वो तो हमेशा अपने फेवर में बोलेंगे हाँ हाँ टैक्स लगा दो, और मेजोरिटी से जीत हो जाता था वो डिसीजन. तो इसीलिए जो कॉमनर्स थे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में जो है डिक्लेयर किया, अपना कोलैबोरेट किया. एंड द रिवोल्यूशनरीज रोज इन रेबेलियन अगेंस्ट द किंग. और उस समय लुई 16 थे आपके फ्रांस में, राजा जो थे ना लुई 16, उनके अगेंस्ट हो गई पूरी प्रजा. एंड द स्टॉर्म्ड इन बेस्टाइल. बेस्टाइल जो था बेटा आपका, ये एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, यानी जहाँ पे कैदियों को नहीं रखा जाता वैसा किला था ये. और वहाँ पे ना आर्म भी बहुत सारे थे, इम्यूनिशन जितना भी होता है, सेना का जितना भी सामान होता है वो भी रखा जाता था. बस लोगों ने उस पर अटैक कर दिया, प्रिजनर्स को रिलीज किया, एंड मोर ओवर जितने भी आर्म थे, वेपन थे, उनको कलेक्ट करके अपने कंट्रोल में ले लिया. एंड देन फाइनली उन्होंने जब रेवोल्यूशन इस तरीके से स्टार्ट कर दी कि हम अपनी आर्मी बनाएंगे, राजा के खिलाफ खुद लड़ लेंगे. सो इन अगस्त 1789 द नेशनल असेंबली डिक्लेयर्ड एन एंड टू द फ्यूडल सिस्टम. And then they declared the Declaration of the Rights of Man and the Citizen. तो इस तरीके से ग्रेजुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और फाइनली डिक्लेयर किया राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन. अच्छा, ये सब हुआ, मास प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया अक्टूबर 1789 में. एंड दे फोर्स द रॉयल फैमिली टू लीव द वर्साई. वर्साई एरिया का नाम है वहाँ का, जो वर्साई छोड़कर आप लोग पेरिस चले जाएं और कभी वापस नहीं आना यहाँ पे. बट इन जून 1791 द रॉयल फैमिली वॉज क्रैप्ड एंड टेकन इनटू द कस्टडी. लुई 16 वॉज लेटर एक्सिक्यूटेड. बट ये ना रेवोल्यूशन चलती रही अराउंड, आप कह सकते हो 3 मेन रेवोल्यूशन वॉज देयर इन द फ्रेंच हिस्ट्री. और लास्ट में क्या हुआ, लोगों ने फाइनली लुई 16 की और उसकी फैमिली को ग्रैब कर लिया और उसको मार दिया, एग्जीक्यूट कर दिया. This ended in the era of French monarchy. In 1792, the power shifted from the Legislative Assembly to the Paris Commune. तो पावर जो है धीरे धीरे शिफ्ट होनी शुरू हो गई. Now when the power shifted, it was made of representative elected from 48 neighborhood districts known as section, and it cleared the way to the first French Republic. अच्छा, मैं आपको एक बात और बताऊं बेटा, फ्रांस में जब आपका आया था ना डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड चार्टर, उसके बाद विमेन ने भी रिवोल्ट कर दी थी. भाई हम भी इतने सालों से आपके साथ शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई कर रहे हैं, और आपने हमें तो कोई राइट्स ही नहीं दिए. फिर से आपने मेन को राइट्स दे दिए, तो फिर से रेवोल्यूशन हुई, विमेन की तरफ से प्रोटेस्ट हुआ. एंड देन फाइनली फ्रेंच जब रिपब्लिक बना तो दे हैड गिवन राइट टू वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू एवरीवन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. सो कहने का मतलब यह है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑल्सो गेव बर्थ टू द रेवोल्यूशन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया ने भी बहुत कुछ सीखा, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे टर्म्स इंडिया ने जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन से लर्न की हैं, सीखी हैं. नाउ मूविंग टू द न्यू ज्योग्राफिकल कैटेगरीज. नए टर्म्स पे आते हैं अब हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ी, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ी, अब कुछ नए टर्म्स में हम आते हैं. राइज ऑफ नेशनलिज्म. When I'm talking about the nationalism, this concept means to feel proud for the nation. New concepts surfaced after the success of these revolutions, and this bound people together by means of shared feeling of oneness. जब लोग सोचने लगे ना हम सब एक हैं, हमारा कॉमन पास्ट है और मिलकर हमें रहना चाहिए, कॉमन आइडेंटिटी है,
then this is the spirit of nationalism, Rashtravad. And the divided countries now started to unite themselves. अब जितनी भी कंट्रीज कॉलोनीज थी, स्लेव थी, उन्हें लगा कि भैया हम जिन बिहाफ पे एक दूसरे से अलग हैं, whether on the name of caste, religion, we need to unite ourselves to fight against the oppressor. And this new trend in the political philosophy resulted in the birth of nation states. अब लोगों को समझ में आ गया अपना देश बनाना है. अब देश बनाना है तो देश क्या होगा? देश एक ऐसी जगह where there is a certain मेंशन ज्योग्राफिकल बाउंड्री. कोई तो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए ना बेटा, क्योंकि पहले के टाइम पे क्या होता था, मोनार्चिकल सिस्टम होता था. आज इस राजा ने लड़ाई लड़ी, उस राज्य को जीत लिया, तो वो राज्य क्या हुआ, इस राजा के कंट्रोल में आ गया, बाउंड्री बढ़ गई. ठीक है. दूसरा राजा आया, उसने लड़ाई लड़ी, कैप्चर कर दिया, बाउंड्री घट गई. तो मतलब एक पार्टिकुलर मैप नहीं होता था मोनार्चिकल सिस्टम में, डिपेंड ऑन द रूलर पावर. ओके. अब क्या हुआ, क्योंकि नेशन स्टेट की टर्म आने लगी कि भाई ये कब तक चलेगा, कोई भी हम पे हमला करे, कोई भी आता रहे जाता रहे. एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, वहाँ पे कॉमन पीपल कॉमन आइडेंटिटी शेयर करके रह रहे हों. अ डिस्टिंक्ट मैनर ऑफ लाइफ एंड गवर्न्ड बाय द अनफिल्ड कोड ऑफ लॉज, यूनिफाइड कोड ऑफ लॉज. तो इस तरीके से ये हुआ कि भैया अब नेशन स्टेट बनाने की ज़रूरत है. द रिवॉल्यूशन इन द फ्रांस एंड द यूएस स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ यूनिटी amongst the people, and people started to think that yes, we are having the common and long history and we have to live together and feel proud to be a nation. The first state to the surface in Europe as united and independent were England and France. Germany and Italy followed the same path in 19th century. तो ये था हमारा नेशनलिज्म, जहाँ लोगों के अंदर ये फीलिंग आई टू फील प्राउड फॉर द नेशन एंड टू मेक वन नेशन स्टेट विद अ कॉमन ज्योग्राफिकल कॉमन हिस्ट्री एंड मेंशन ज्योग्राफिकल बाउंड्री. नाउ द बर्थ ऑफ इम्पीरियलिज्म, ये भी अपने आप में एक नई टर्म थी बेटा उस समय. इम्पीरियलिज्म, देखो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो उससे क्या हुआ कि भाई हमें जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई, नाउ यूरोपियन पीपल नीड द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक द फिनिश गुड. अब ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, उनके देश में उतना रिसोर्स थोड़ी ना है नहीं. टू फाइंड आउट द रिसोर्सेज दे स्टार्टेड टू सेल ओवर द अदर कंट्रीज टू कैप्चर द रिसोर्सेज. अभी क्या था, जब वो आगे जाते गए उन्हें लगा कि हाँ भैया रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, देन दे वर हैविंग अ ग्रेट व्हाई नॉट टू कैप्चर द लैंड टू फीड द मदर नेशन. तो स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, अ यूनिफाइंग फोर्स, सपोर्टेड द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट, बट दीज नेशंस दैट वर सपोर्टेड और दे वर हैपनिंग ऑफ द मैनी रिवोल्यूशन. हुआ क्या, जितनी भी ये ब्रिटिशर्स थे, जब ये नए लैंड पे जाते थे, दे स्टार्टेड टू कैप्चर दोज एरियाज, द न्यू लैंड्स, एंड मेक देम देयर ओन कॉलोनीज एंड ट्रीट देम एज अ स्लेव्स. अब जिसको कॉलोनी बनाते थे बेटा, उसके जो रिसोर्सेज होते थे वो यूटिलाइज करते थे टू फीड द मदर नेशन. फॉर एग्जाम्पल इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. इंग्लैंड की कॉलोनी हम रहे. इंग्लैंड ने क्या किया, हमारे सारे रिसोर्सेज, वेदर इट्स कोल हो, पेट्रोलियम हो, डीजल हो, क्रॉप्स हो, डिफरेंट टाइप्स की फूड क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स, सबको ओवर एक्सप्लॉइटेड किया, यूटिलाइज किया टू फीड देयर मदर नेशन, इंग्लैंड को डेवलप करने के लिए. क्योंकि वहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था तो रॉ मटेरियल कंटिन्यूसली पहुँचना चाहिए था, और हमें स्लेव की तरह ट्रीट करते गए. सो दिस रूट इज नोन एज द इम्पीरियलिज्म. इम्पीरियल मतलब अपनी पावर को स्ट्रॉन्ग करना. After exploring the new countries en route to these places, the Europeans were enabled to dedicate themselves to energetically exploiting the rich and natural resources of these colonies. और धीरे धीरे वो कॉलोनीज जो हैं वो बैकवर्ड कॉलोनीज बनती गई. बिल्कुल कह सकते हो weak countries of Asia and Africa were under the Britishers at that time, and they made so many colonies in Asia and Africa, including the India also. Now
the prime targets for the daring European adventurers, and this was where they came to trade and to set up their colonies. आए तो ट्रेड के बहाने थे, बिजनेस करेंगे हम, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसे अपनी कॉलोनी बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब कॉलोनी बना लिया, फिर कॉलोनी से स्लेव बनाना शुरू कर दिया, सप्रेस करना शुरू कर दिया, ब्रूटल सप्रेशन, and this gave birth to the expansion of the imperialism. Imperialism means the term which signifies the forceful extension of a particular nation's dominance. जबरदस्ती जब आप किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में लेते हो ना, उसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक सब रूल आप अपने अंडर ले लेते हो, that is known as imperialism. And you know beta, by the mid of 18th century, the East India Company became the most dominant group amongst the European traders in Asia. क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी, पोर्चुगीज भी आए थे, डच भी आए थे, लेकिन इन सब में डोमिनेंस कौन किसका हुआ? जो डोमिनेंट पावर थी, दैट इज द ब्रिटेन. And thus started the colonial imperialist conquest of Asia. और धीरे धीरे ब्रिटेन को लगा पूरा एशिया और अफ्रीका जो है कैप्चर कर लेना चाहिए. So throughout the 19th century, there was extraordinary industrial expansion in Europe. और मैक्सिमम पार्ट जो एशिया और अफ्रीका का था, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फीड करने के लिए यूरोपियन इंपीरियलिज्म के अंडर आता गया, क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत सारे रिसोर्सेज थे और एशिया में भी, वो इसको यूटिलाइज करते थे अब टू फीड देयर ओन कंट्री. सो दैट वाज इंपीरियलिज्म. अच्छा, अनदर टर्म पे अब हम चलते हैं, दैट इज सोशलिज्म. सोशलिज्म की जब बात आती है ना, हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स भी आता है, रशियन रेवोल्यूशन भी आती है. इन मिड ऑफ द 19th century, टू फिलोसफर, दो मेन फिलोसफर हुए थे. वन वॉज द कार्ल मार्क्स and the second was Frederick Engels. ये दो फिलोसफर हैं बेटा, jointly scripted a book, और उस बुक का नाम उन्होंने रखा The Communist Manifesto, which was published in 1848. अब जब इन दोनों ने ये बुक लिखी, तो इस बुक में उन्होंने पता है क्या दिया था? उन्होंने ये मेंशन किया था that concentrated the capitalism must be replaced by the new system of social organization in which the property, profit and distribution of the income resources were subject to the social control instead of particular individual or group of individual. उनका ये कहना था कि जो ये सोसाइटी है धीरे धीरे हैव्स और हैव्स नॉट में डिवाइड हो रही है, यानी रिच और पुअर में डिवाइड होती जा रही है. क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है कुछ लोगों के हाथ में रह गया है. कैपिटलिज्म फैलता जा रहा है, जिसके पास पैसा था, वेल्थ था, वो इन्वेस्ट कर करके नई नई इंडस्ट्री खोल रहा है और वो ज़्यादा ही बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनता जा रहा है. काम कौन करते हैं? वर्कर्स, लेबर्स. लेकिन लेबर्स गरीब होते जा रहे हैं. वो ये कहते थे कि जो मजदूर खान में जाकर माइनिंग करके अंदर से हीरा लेकर आ रहा है, डायमंड लेकर आ रहा है, वो गरीब है, उसको खाने के लिए भी पैसा नहीं मिल रहा. काम वो कर रहा है ना, रिस्क वो ले रहा है. लेकिन जिसके पास पैसा था, जिसने इन्वेस्ट किया इस माइनिंग प्रोसेस में, वो अमीर होता जा रहा है. तो ये जो कुछ लोगों के हाथ में इंडिविजुअली जो प्रॉपर्टी गेन होती जा रही है, वो खत्म होनी चाहिए. रिसोर्सेज और इनकम जो है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, तभी सोसाइटी इक्वल लेवल पे आएगी. That is the philosophy of socialism, where we are asking about the equal social platform, equal distribution of the income and resources amongst the people. तो ये था हमारा socialism. It was discussed that since the workers alone could change the raw materials into the final product with the use of machine, डिस्पाइट ऑफ डैट कि ओनर को पता है कि सारा काम वर्कर कर रहे हैं, उनका पैसा लग रहा है, वो थोड़ा सा भी प्रॉफिट शेयर करने को तैयार नहीं है, सो डैट द वर्कर कैन ऑल्सो लिव अ गुड लाइफ. दैट्स वाई दे ऑलवेज सेड, स्पेशली आपके जो कार्ल मार्क्स थे, वो तो बिल्कुल ही अगेंस्ट थे इस कैपिटलिज्म के, और वो सोशलिज्म के फेवर में थे. वो कहते थे जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसे बोलने का अधिकार नहीं है, उसे खाने का अधिकार नहीं है, उसे प्रॉफिट शेयर करने का अधिकार नहीं है. This is very wrong.
So the revolutionary concept there, the very basis of the capitalism. By the end of 19th century, socialism had become very popular across the Europe, especially in the Russian society. ये जो आपका socialism था वो बहुत तेजी से फैला, जहाँ पे हम समाजवाद की बात करते हैं कि हर हिस्से को जो है कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए, इक्वल शेयर इन द रिसोर्सेज। अब आप यहाँ देखिए बेटा, आपको दिया ब्लू बॉक्स में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या आपको समझ में आना चाहिए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या होता है। इन 1848 कार्ल मार्क्स अलॉन्ग विद द फ्रेडरिक एंजल्स लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द सोशलिज्म। मैंने आपको बताया उन्होंने सोशलिज्म को बढ़ावा दिया था, उसकी नींव रखी थी। उनकी बुक जो थी द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसमें उन्होंने मेंशन किया था द हिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल्स। ये जो सोसाइटी चली आ रही है, इस सोसाइटी में क्या है, ये हिस्ट्री बनती जा रही है स्ट्रगलर क्लास की, कुछ नहीं मिल रहा जिन्हें। द बुक फेमसली डिक्लेयर्ड दैट द वर्किंग क्लास वुड बी द ग्रेव डिगर ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। काम वो कर रहे हैं और भूखे ये मर रहे हैं। तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल शेयर मिलना चाहिए, इक्वल शेयर, इक्वल प्रॉफिट, इक्वल लॉस। द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया, और इसका इफेक्ट रशिया पे भी पड़ा। आफ्टर द यूरोपियन एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन अनदर ग्रेट मूवमेंट विच वी नीड टू डिस्कस अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। This revolution led to overthrow the autocratic rule of the Tsar. Tsar बेटा वहाँ के राजा को कहा जाता था। Sometime we write CZAR and sometime in few books you will find TSAR. But the pronunciation is Tsar. Tsar means the rulers. Resulting the decline of Tsar Nicholas II and the elimination of the entire Romanov dynasty. क्योंकि क्या हुआ, जब ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई ना तो ज़ार का रूल था, और उस समय ज़ार निकोलस सेकंड जो थे वो राजा थे रशियन सोसाइटी के, और लोग उनके बिल्कुल खिलाफ हो गए थे। तो यही हुआ कि इस रेवोल्यूशन के बाद जो ये रोमनेव डायनेस्टी थी, जिसके ये ज़ार निकोलस रूलर थे, ये डायनेस्टी का एंड हो गया। दिस वॉज फॉलोड बाय द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोवियत यूनियन इन 1922। जब ये डायनेस्टी, ये मोनार्चिकल सिस्टम एंड हुआ तो वहाँ पे आई सोवियत यूनियन। द यूएसएसआर, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये आपको स्पेलिंग जो है ना इसका USSR, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक which was lasted till 1991, after which it broke down. 1991 तक चली, उसके बाद इसके साथ जो कमिंग टुगेदर में देश आए थे वो कुछ अलग हो गए, फिर बच गया सिर्फ रशिया। अदरवाइज पहले क्या था, द सोवियत यूनियन, यानी कि रशिया के साथ उसके आसपास के कुछ और भी देश थे जो उसके साथ मिक्सअप होकर उन्होंने बनाया द सोवियत यूनियन। ओके, नाउ कॉलोनलाइजेशन ऑफ एशियन कंट्रीज को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश पोजीशन इन एशिया एंड स्पेशली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडिया। कैसे ब्रिटिशर्स ने अपना हक जो है जता दिया, कैप्चर कर दिया पूरा इंडिया को। द पोर्चुगीज हैड सेट अप देयर बेस इन गोवा आफ्टर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी रूट टू इंडिया बाय वास्को डी गामा इन 1492। तो इन्होंने अपना बेस बनाया था पोर्चुगीज ने गोवा में। ओके, देन 17th सेंचुरी में अगर आप देखोगे तो डच ने आके रिप्लेस कर दिया पोर्चुगीज को। अब ये डच आ गए, डच पावर में आ गए, पोर्चुगीज रिप्लेस हो गए, और डच उस समय डोमिनेंट पावर बन रहा था एशिया में ग्रेजुअली। फिर इन 1600 AD क्या हुआ, द ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स ऑफ लंदन दे एस्टैब्लिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दे फर्स्ट established their factory at सूरत। सूरत आपको पता है ना बेटा गुजरात में है, वहाँ पे इन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर दी। एंड दिस इज द टाइम व्हेन ग्रेजुअली द ब्रिटिश इंक्रीज देयर पॉलिटिकल पावर इन इंडिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स को समझ में आ गया था नॉट ओनली फॉर ट्रेडिंग पर्पस, इंडिया इज अ लैंड वेयर वी कैन गेन द पॉलिटिकल पावर ऑल्सो। So by 1765 they had become the political power. In Bengal, Bihar,
Odisha. This was the starting of the British imperialism in India. धीरे 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 एक स्टेट फिर दूसरा स्टेट तीसरा स्टेट करते करते कैप्चर करते गए एंड टेकिंग बेनिफिट ऑफ द डिस्टिंक्शन अमंग द इंडियन रूलर्स. उस समय क्या था, इंडिया के जो रूलर्स थे उनमें आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट थे, आपस में ही लड़ाई करते रहते थे, एक दूसरे के जो स्टेट्स थे उनको कैप्चर करते थे, अटैक करते थे. दे कॉन्क्वर्ड द टेरिटरी वन आफ्टर अनदर. उन्होंने इसका बेनिफिट उठाया कि जो इंडियन रूलर्स हैं वही डिवाइड हैं, तो बस कॉन्क्वर करो और एरिया जीतो, और ये उन्होंने किया भी. एंड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द पंजाब इन 1849 द एंटायर ऑफ इंडिया बिकेम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. पंजाब को हराने के बाद ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो पूरा इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के कैप्चर में आ गया. अब हम बात करते हैं चाइना एंड द ओपियम वॉर. ओपियम अफीम होती है ना बेटा, जिससे नशा भी हो जाता है, तो चाइना और ओपियम वॉर को डिस्कस करना भी यहाँ ज़रूरी है. द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटेन एंड चाइना इट वाज सरफेस इन 1839. स्टार्टिंग से मतलब ये 1839 से ही इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी ब्रिटेन और चाइना में. बाय दिस टाइम क्या हुआ कि चाइनीज पोर्ट जो थे ऑफिशियली स्टॉप द ब्रिटिश फ्रॉम डिस्टर्बिंग द ओपियम टू चाइनीज पोर्ट वर्कर. भाई उन्होंने बोला कि यार जो आप ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ना, आप चाइना में आकर और ओपियम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो हमारे वर्कर्स के अंडर, तो हमारे वर्कर्स तो फिर काम करने लायक ही नहीं रहेंगे, नशा करने लग जाएंगे. तो इन्होंने स्टॉप कर दिया कि कोई भी ब्रिटिश का जो ये शिप है वो नहीं आएगा यहाँ चाइना में. ब्रिटेन वॉज एंग्री बाय द रिफ्यूजल ऑफ द चाइनीज एम्परर टू ग्रांट देम द राइट टू फ्री ट्रेड. अब तो इन्हें गुस्सा आ गया, भाई ओपियम को बेच बेच के इनको तो भाई पैसा कमा रहे थे, और जब चाइनीज रूलर ने मना कर दिया कि नहीं यू डोंट हैव फ्री राइट टू ट्रेड, द एम्परर वाज नॉट इन फेवर ऑफ ओपियम बीइंग स्मगल्ड इनटू द चाइना. कि आप इलीगल तरीके से चाइना में ओपियम को स्मगलिंग कर रहे हो, दैट इज नॉट अलाउड. नाउ यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द चाइनीज मार्केट. Thus, a very big consignment of opium in a British warehouse in Canton was destroyed in 1839. अब क्या करोगे, इतना सारा ओपियम था कि इन्हें डिस्ट्रॉय करना पड़ गया 1839 में अपने कैंटोनमेंट से. द ब्रिटिश डिक्लेयर द वॉर अगेंस्ट चाइना. उन्हें गुस्सा आ गया कि बहुत हैवी लॉस हुआ है और उन्होंने चाइना के अगेंस्ट वॉर छेड़ दी. एंड दिस वॉर वॉज नोन एज फर्स्ट ओपियम वॉर. ये आपको पता होना चाहिए. देखो ओपियम के अगेंस्ट राजा ने कोई गलत कदम तो उठाया नहीं, उसने मना कर दिया जी गलत चीज़ को जो है स्मगल नहीं करोगे आप. और जब ये लड़ाई हुई ओपियम के अगेंस्ट, तो चाइना और ब्रिटेन की लड़ाई को कहा गया फर्स्ट ओपियम वॉर. नाउ इस वॉर में क्या हुआ, द ब्रिटिश वॉज विक्टोरियस एंड अ ट्रीटी कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ, ये देखो ट्रीटी का नाम आपको याद रखना है, नैनकिंग. The Treaty of Nanking was signed in 1842. ब्रिटिश की जीत होने के बाद ये एग्रीमेंट साइन करना पड़ गया राजा को. एंड अंडर दिस ट्रीटी द ब्रिटिश गॉट पोजीशन ऑफ हांगकांग ऑन ए 99 ईयर लीज. इतनी बड़ी लीज 99 ईयर के लिए हांगकांग उनके कंट्रोल में आ गया ब्रिटिशर्स के. एंड द ब्रिटिश वर ऑल्सो परमिटेड टू ओपन 5 पोर्ट्स कंप्राइजिंग ऑफ किंटोन टू ट्रेड विद द चाइना. भाई अब देखो पूरा देश कैप्चर करते हैं, उन्होंने सरेंडर कर लिया, एग्रीमेंट किया ब्रिटिशर्स के साथ, 99 ईयर के लिए हांगकांग को लीज पे दे दिया और 5 पोर्ट ओपन करने की परमिशन भी मिल गई ब्रिटिशर्स को. अब तो करेंगे वो अपना अंधाधुंध बिजनेस. A year later the British received the most favored nation status under the Treaty of the Bosch. और ये भी एक साइन हो गई. And it was also granted the right of extra territory, which signified the exemptions from the prosecution or arrest or any type of search or seizure of the British nationals. मतलब देखो क्योंकि वो चाइना के को हराते गए तो उन्होंने एग्रीमेंट साइन करने शुरू कर दिए. अभी जो दूसरा एग्रीमेंट था उसमें तो बिल्कुल ही ब्रिटिशर्स फ्री हो गए, क्योंकि उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी, वो क्या ला रहे हैं क्या ले जा रहे हैं, और अगर वो पकड़े गए तो उन्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलनी है, तो भैया कुछ भी करें फिर तो वो. ऐसा एग्रीमेंट भी साइन हो गया. Soon other colonial powers such as the United States, France, Belgium, Sweden, Norway and Portuguese, इन सबको दिखने लगे ये सारी चीजें. Now Portugal, they also sought similar concession from the Chinese and signed their own treaties.
भाई सबको दिखा कि ब्रिटेन फ़ायदा उठा रहा है, व्हाई नॉट अस। वर्ल्ड की अदर कंट्री भी आ गई चाइना पे अटैक करने के लिए, और उन्होंने भी इस तरीके के कंसेशन मांगने शुरू कर दिए, और चाइना को सबके साथ, क्योंकि देखो वन आफ्टर अनदर कोई ना कोई आता जा रहा है चाइना में, और चाइनीज़ जो थे वो कंपेल हो गए इन एग्रीमेंट को, इन ट्रीटीज़ को साइन करने के लिए। दिस लेड टू द अनरेस्ट इन द चाइना एंड देयर वर वायलेंट एंटी फॉरेनर डिस्टर्बेंस। अब चाइना के लोगों को गुस्सा आने लग गया। मतलब देखो चाइना में अपने देश के लिए नहीं लड़ाई हुई, अपने लोगों के बीच में लड़ाई नहीं हुई, ये जो बाहर से फॉरेनर्स आ रहे थे जो बार बार उनके इलीगल तरीके का काम करवा रहे हैं और गलत तरीके की एग्रीमेंट ट्रीटी को साइन करवा रहे हैं, एंटी फॉरेनर डिस्टर्बेंस हो गई थी चाइना में। In one of the such incidents, a minor humiliation to the British flag and also the more serious incidents of the murder of a French missionary led both Britain and France, French missionary, क्या किया इन्होंने? They declared the war. सिर्फ कहते हैं ना एक इंसिडेंट ऐसा हुआ जहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग को उन्होंने ह्यूमिलेट किया चाइनीज़ ने, दूसरा इंसिडेंट ये कर दिया उन्होंने, उन्हें गुस्सा आ रहा था, फ्रेंच मिशनरी का कत्ल कर दिया। अब इससे क्या हुआ, ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही गुस्से में आ गए, उन्होंने वॉर डिक्लेयर कर दी। अब ये वॉर जो हुई दैट इज द सेकेंड वॉर ऑफ ओपियम। ये सेकेंड ओपियम वॉर होगी। पहली तो राजा के बीच में हुई थी और ब्रिटेन के बीच में चाइना के, अब ये यहाँ पे इनके बीच में हो रही है। अब it led to signing the Treaty of Zansen. The Chinese later denied to ratify this treaty, and this led to the Anglo-French War against China. पहले तो इन्होंने ट्रीटी साइन कर ली, बाद में इन्होंने बोला हम नहीं मानते, फिर लड़ाई शुरू हो गई। और जब ये एंग्लो फ्रेंच वॉर हुई चाइना के अगेंस्ट, बीजिंग इट वॉज ऑक्यूपाइड, बीजिंग वहाँ का शहर है, चाइना की कैपिटल है, it was occupied as a result of this war. And by the end of 19th century, the British were in occupation of a large part of Chinese territory. Hong Kong भी उसमें आ गया था, and a chunk of Kowloon. यानी कहने का मतलब ये है कि चाइना भी इस ओपियम वॉर में धीरे धीरे अपनी टेरिटरी को लॉस करता गया और बहुत सारे गलत एग्रीमेंट को उसे फॉलो करना पड़ा। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ओपियम वॉर थी। अब हम चलते हैं पोर्चुगीज पोजीशन इन एशिया। ब्रिटेन का पढ़ा, अब पोर्चुगीज का भी पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया एशिया में। Portuguese adventurer named Vasco da Gama sailed around the Cape of Good Hope. ये Cape of Good Hope क्या होती है बेटा? अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा है ना बेटा, तो पहले क्या होता था, जैसे यहाँ पे यूरोप है मान लो, ठीक है, और इंडिया आपका यहाँ पर है, ओके, बीच में अफ्रीका पड़ता था। अब ये पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके फिर इंडिया आ पाते थे। अराउंड 7000 किलोमीटर का अफ्रीका इन्हें क्रॉस करना पड़ा था, बड़ी ही लॉन्ग जर्नी होती थी। तो जब ये यूरोप से यहाँ आते थे, अफ्रीका को क्रॉस करते थे, तो ये जो टिप है ना अफ्रीका का, ये टिप यहाँ पे ये जो है रेस्ट करते थे, और इस टिप पे जब रेस्ट करते थे कुछ समय के लिए, फिर उसके आगे सेल करेंगे शिप, तो इसको इन्होंने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, कि अच्छी उम्मीद में हम आगे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अफ्रीका का टिप है, Cape of Good Hope, the southern tip of Africa, and reached the Indian port of Calicut in 1498. ये जो आपके थे ना वास्को डी गामा, ये कालीकट पहुंचे थे 1498 में, thus opening the sea route between the Europe and India. तो हम कहते हैं कि भैया सी रूट जो है वास्को डी गामा ने डिस्कवर किया इंडिया के लिए, इंडिया और यूरोप के बीच में। The Portuguese began to trade with India and the Spice Island in Far East Asia. They set up colonies in India at Goa, Daman, Diu, जो हमारी ये यूनियन टेरिटरीज है ना, दमन एंड दीव, उस पर भी उन्होंने अपनी मतलब सेटअप कर दिया था, एंड द तिमोर एंड मकाओ आइलैंड इन द फॉर ईस्ट। दे ऑल्सो ट्राई टू ऑक्यूपाई श्रीलंका, श्रीलंका में भी उन्होंने कोशिश की थी, बट वर ड्राइवन आउट बाय द डच, क्योंकि वहाँ डच ऑलरेडी थे तो उन्होंने उन्हें भगा दिया, वर ऑलरेडी वेल सेटल्ड देयर। तो पोर्चुगीज़ ने इंडिया के थ्रू जो है कैप्चर करना शुरू किया था एशिया के कुछ पार्ट्स को। अब चलते हैं डच पोजीशन इन एशिया। डच ने अपना पोजीशन कैसे लिया, मतलब सोचो एशिया और अफ्रीका तो ऐसे ही बैठा हुआ था, है कोई भी आए और कैप्चर करता जाए, पोजीशन लेता जाए। द डच ऑल्सो सेट अप अ ट्रेडिंग कंपनी टू द ट्रेड विद इंडिया
and the Spice Island in the far east. And they occupied, क्या किया उन्होंने कि उस समय जो आपका बेंटम था from the Portuguese and set up a trade center there. यानी कहने का मतलब ये था इन्हें भी एशिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिले, रिसोर्सेज, स्पेशली मसाले, स्पाइसेस के पीछे ना यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आए हैं, एंड द अदर रिसोर्सेज. एंड देन क्या हुआ यहाँ पे नेक्स्ट, द डच ऑक्यूपाइड द एम्बोना, जकार्ता. आप देख रहे हो ये सारे आइलैंड और इस तरीके की कंट्रीज को इन्होंने कैप्चर करना शुरू किया. इन दिस मैनर दे बिकेम द मास्टर्स ऑफ जावा, सुमात्रा. ये जो आपके आइलैंड है ना, जावा, सुमात्रा, बॉन, इस सबको कैप्चर कर लिया डच ने. एंड देन इन 1641 AD दे कैप्चर द मलाक्का. 1658 में एक्सेप्टेड श्रीलंका फ्रॉम द पोर्चुगीज. सोचो, श्रीलंका को भी कर लिया इन्होंने कैप्चर, पोर्चुगीज को भगा दिया. बट आफ्टर द डिफीट ऑफ द डच इन नेपोलियनिक वॉर इन यूरोप, श्रीलंका बिकेम द पपेट इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश. क्योंकि डच वहाँ लड़ाई में लग गए, वहाँ उनकी हार हो गई, इधर ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका पे कैप्चर कर लिया. तो जो श्रीलंका इनके अंडर था, डच के अंडर, वो ब्रिटिश के हैंड में चला गया. अब हम बात करेंगे फ्रेंच कॉलोनीज इन एशिया. देखो यूरोप के अलग अलग देश आ रहे हैं ना, ब्रिटेन हो गया आपका, पोर्चुगीज हो गए आपके, डच हो गए. अब फ्रेंच की बात करते हैं. 1664 क्या हुआ, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जैसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वैसे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वो बनाई गई. अब इन इंडिया द फ्रेंच सेटअप द कॉलोनीज. और कहाँ कहाँ उन्होंने सेटअप किया, सबसे पहले उन्होंने पौंडीचेरी और चंदर नगर में सेटअप किया. फिर 1721 तक आते आते उन्होंने मॉरिशियस आइलैंड को कैप्चर कर लिया. इंडियन ओशन में है ना हमारा मॉरिशियस आइलैंड, वहाँ कैप्चर किया. सेम मैनर में उन्होंने क्या किया, उन्होंने माहा में अपना जो है सेटअप लगाया. फिर अंडर नेपोलियन III द फ्रेंच फॉलोड एन एग्रेसिव पॉलिसी. 1860 में क्या हुआ, द लैंडेड ट्रूप्स इन द वियतनाम and pretext of the protecting Christian of Indochina and captured it. वियतनाम को भी इन्होंने कैप्चर किया, ये कह के कि भैया हम तो क्रिश्चियनिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे. Then 1885 में इंटायर वियतनाम had come under the French influence पूरा. And the French also set up trading center in Cochin, चाइना में भी, कंबोडिया में भी, फार ईस्ट में भी उन्होंने अपने ट्रेडिंग सेंटर को सेटअप करना स्टार्ट किया. अभी क्या हुआ कि इन एडिशन टू फ्रांस ऑल्सो गेट द क्वांगचो, ये जो आपका था ना प्रोविंस चाइना का क्वांगचो, वो भी उन्होंने 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया. मतलब चाइना ने देखो अपने आप को पूरा कैसे गुलाम किया है. पहले उसने हांगकांग 99 ईयर के लिए लीज पे दिया ब्रिटेन को, अब जब ये हार गया तो क्वांगचो इसे दे दिया 99 ईयर के लिए. एंड द फ्रेंच हैड ऑल्सो सेट अप देयर ओन ईस्ट इंडिया कंपनी. एंड देन दे केम इनटू द इफेक्ट विद द इंग्लिश. उन्होंने इंग्लिश के साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़ाई हुई. एंग्लो फ्रेंच वॉर इंडिया में हुई, जिसमें फ्रेंच की हार हुई और इंग्लिश ने अपना इस्टेब्लिश कर लिया था पूरा का पूरा कंट्रोल इंडिया पे. तो फ्रेंच को यहाँ से धीरे धीरे जाना पड़ा इंडिया से. अब चलते हैं जर्मन पोसेशन इन एशिया. मतलब यूरोप के सारे ही देश आ गए थे, अब एशिया में सबको ही लग रहा था कि कॉलोनी बनाने. जर्मन ने भी कुछ कॉलोनी बनाई एशिया में बेटा. उन्होंने नॉर्थ ईस्ट रीजन तो था जो आपका ग्याना का, एंड इट ऑल्सो गेट द क्याओशो प्रोविंस फ्रॉम चाइना ऑन लीज, एंड देन ट्रेडिंग कंसेशन लिया इन्होंने. एंड देन इन पैसिफिक ऑल्सो जर्मन कैप्चर द कैरोलाइन एंड द आपका ये दिस वन मार्शल आइलैंड. तो छोटे छोटे आइलैंड्स पे इन्होंने भी पोजीशन लिया है, कैप्चर किया है. इसके बाद हम रशिया पे चलते हैं. तो रशियन पोजीशन देखें अगर एशिया में, आफ्टर द डिफीट ऑफ द क्रिमियन वॉर्स द रशियन रूलर्स बिगेन टू ऑक्यूपाई द सेंट्रल एशियाटिक रीजन. सेंट्रल एशिया का जो एरिया था ना, इन्होंने सोचा हम इसको ऑक्यूपाई कर लेंगे. सो 1846 से लेके 1865 तक अगर आप देखोगे तो उन्होंने बुखारा हो गया, खोकंद हो गया, खीवा हो गया, ताशकंद हो गया, समरकंद हो गया, तुर्किस्तान हो गया, इन सबको ऑक्यूपाई कर लिया था सेंट्रल एशिया में. एंड रशिया ऑल्सो रिसीव द आइलैंड ऑफ ल्यूटोंग फ्रॉम द चाइना ऑन अ लीज ऑफ 25 ईयर. मतलब मैं ये देख रही हूँ बेटा कि चाइना कितने शहरों को और कितने आइलैंड को लीज पे देता जा रहा है इस तरीके से. नाउ
वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द सोर्सेज। क्योंकि बेटा इतना सारा हमने पढ़ा तो क्वेश्चन तो अराइज होता है ना हमारे माइंड में कि इतना जो मैम बता रही हैं इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ से पता चलता है हमें क्या कि ये सच्चा है या नहीं है। So there are so many sources like manuscripts हो गए, डायरीज हैं, बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, कार्विंग, इंस्क्रिप्शन है, कल्चरल रिमेन्स हैं। सी मॉडर्न टाइम के लिए तो वी आर हैविंग n numbers of resources or sources through which we can get the information of this period. And there are two types of sources. Number one is the primary and another is the secondary resources. When I am talking about primary sources beta, it signifies to all original documents and other form of literary evidence. अगर इसमें देखोगे ना ओरिजिनल है सारा, और इस ग्रुप में हम किसको जैसे कहते हैं ना ऑब्वियसली आपके एप्लीकेबल टू द मॉडर्न एरा, हम मॉडर्न एरा की ही बात कर रहे हैं इसमें। तो इसमें आपकी फिल्म्स आ जाती हैं, वीडियो टेप्स आ जाते हैं किसी इंसिडेंट्स के, पेंटिंग्स आ जाती हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इंटरव्यूज़ आपने ले लिया किसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ का, या मैगजीन है या न्यूज़पेपर है, तो ये सब इसमें आते हैं प्राइमरी रिसोर्सेज में, क्योंकि सामने सामने बात हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी सोर्सेज में अगर हम बात करें तो इट कॉर्पोरेट द वर्क एंड द बुक्स ऑफ हिस्टोरियंस, जो बुक्स लिख के गए हैं हमारे हिस्टोरियंस, ठीक है। और दे कैन ऑल्सो भी इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट हो गई, आर्टिकल हो गया, रिव्यू है, सर्वेज हैं, शिप्स लॉग्स हैं, मेमोयर्स हैं, ऑफिशियल डिक्रीज हैं, मैनिफेस्टोस एक्सेट्रा हैं। तो इन सब से हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती है मॉडर्न पीरियड की। राइटिंग एंड प्रिंटिंग वर ईदर इन देयर अर्ली स्टेज और हैड नॉट डेवलप्ड एट ऑल इन द एंशिएंट पीरियड। तो अगर आप राइटिंग और प्रिंटिंग की बात करोगे तो एंशिएंट हिस्ट्री की हमें उसे नॉलेज नहीं मिलती, लेकिन हाँ प्रिंटिंग से हमें मॉडर्न एरा की और राइटिंग से हमें मेडिवल पीरियड की नॉलेज मिलती है। दिस इज व्हाई ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ दोज अर्ली पीरियड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड। तो अर्ली पीरियड का जो डॉक्यूमेंटेशन है बहुत कम है, ना के बराबर है। मेडिवल पीरियड का है और मॉडर्न का बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो रखा है आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। अच्छा, इसमें एक आपको देखना है, द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग वॉज पिक्टोरियल स्क्रिप्ट। ऐसा माना जाता है जो पहले अर्ली ह्यूमन बींग होगा ना, इस तरीके से कुछ पिक्चर्स पिक्टोरियल फॉर्म में लिखता होगा। देन द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट यूटिलाइज बाय द सुमेरियन जो थे इजिप्ट के, उन्होंने एक स्क्रिप्ट जो है डेवलप की थी, दैट वाज द क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट 3000 BC में, इंक्लूडिंग द वेज शेप्ड मार्क्स ऑन द क्ले टैबलेट। वो क्या करते थे बेटा, क्ले जो होता था ना, क्ले की मोटी मोटी टैबलेट्स बनाते थे, फिर उस पर इंग्रेव करके, बिल्कुल वेज टाइप की नुकीली टाइप की होती थी उनका, और उससे जो है वो लिखते थे, फिर उसको सुखाने के लिए रख देते थे। अ काइंड ऑफ ग्रेव, जैसे आप क्ले पे कुछ अगर डिज़ाइन कर देते हो, तो दैट इज़ द क्यूनिफॉर्म। तो इस तरीके की भी पिक्टोरियल स्क्रिप्ट और अदर स्क्रिप्ट हमें मिली है। नाउ आफ्टर द डेवलप्ड राइटिंग सिस्टम मैन स्टार्टेड टू रिकॉर्डिंग देयर आइडियाज़, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग आ गई, फिर इम्प्रेशन आ गई, राइटिंग ऑन द सरफेस आ गया, फिर बार्क होता है ना आपका ट्री का, जब आप निकालते हो तो वाइट कलर का मिलता है अंदर से, उस पर लिखना, फिर लीव्स पे, फिर एनिमल स्किन जिसे वेलम कहा जाता है उस पर लिखना स्टार्ट हो गया। एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस की बात करें, सो वी फाउंड मेनी इंस्क्रिप्शन इनग्रेव्ड ऑन द स्टोन्स हो गए, आपके पिलर्स हो गए, एंड दैट इज कॉल्ड एज एपिग्राफिक एविडेंसेस। जो भी आपको इनग्रेव चीज़ मिलेगी ना उसे हम कहते हैं एपिग्राफिक एविडेंस। ओके, देन गुड इंस्टांसेस ऑफ दीज आर अशोकास। अशोका ने बहुत सारे रॉक एडिक्ट्स जो है इनग्रेव कराए थे पिलर पे, समुद्रगुप्ता ने भी अपना रॉक एडिक्ट्स जो है या पिलर एडिक्ट्स बनवाए थे। Now the period of literature that also started with the invention of the paper in 104 AD. But several centuries were to pass before became available in the subcontinent. क्योंकि पेपर हर जगह अवेलेबल तो हुआ नहीं था, बहुत टाइम लगा था अलग अलग पार्ट में पहुंचने के। So contemporary writer therefore had to manage with traditional material. अब उन्हें क्या लगता था, जो जहाँ पे पेपर नहीं पहुँचा वो अभी भी लीव बार किन्हीं पे लिखते रहते थे। Now पार्ट्स ऑफ सच ओल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट होता है बेटा हैंड रिटन बुक, जैसे हम हाथ से लिखते हैं, फ्रॉम द पास्ट दैट हैव मैनेज टू सर्वाइव इनटू मॉडर्न टाइम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक को हम कहते हैं इंडिजीनियस लिटरेचर और दूसरे को हम कहते हैं ट्रैवल अकाउंट। इंडिजीनियस लिटरेचर जो पहले के लिखे हुए हमारे वेदास हैं, उपनिषद हैं, एपिक्स हैं, महाभारत, द रामायण, पुराण एक्सेट्रा, जैन और बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं हमारे पास, वो होते हैं। ट्रैवल अकाउंट्स में द ट्रैवलर्स हु ट्रैवल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द
वर्ड एंड दे स्टार्टेड टू राइट द ट्रेवलॉजेस। अपनी जो यात्रा का वृतांत करते हैं ना, लिखते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रेवलॉजेस। तो वो ट्रैवलर से काउंट होते हैं। लाइक आपके चंद्रगुप्त के कोर्ट में आए थे ना मेगास्थनीज, ग्रीक एम्बेसडर थे, ही हैज़ रिटन द बुक इंडिका। तो उनके थ्रू हमें उस समय का इंडिया और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पता चलता है। फाइयान आए, अदर चाइनीज़ पिलग्रिम आए, उन्होंने भी अपनी बुक्स लिखी। ये होता है। देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑल्सो। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स क्या होते हैं? जो हमें खुदाई के समय मिले हैं, जो भी रूइंस हमें मिले हैं, कोई टेम्पल के अवशेष हैं, या हमें फॉसिल्स इम्प्रिंट्स मिले हैं, या हमें पॉटरी मिली है, या हमें कोई टॉय मिला है, तो जो भी हमें इन एक्सकेवेशन के दौरान रूइंस जो भी रिमेन्स मिले हैं, दैट इज़ नोन एज आर्कियोलॉजिकल रिमेन। अगर आप देखोगे लोथल में, मोहनजोदाड़ो में बहुत मतलब एन नंबर्स के आपको जो है ना उस सिविलाइजेशन से रिलेटेड टॉयज़ और अदर मटेरियल्स, पॉट हैं आपके, स्केलेटन है, इस तरीके के मिले हैं हमें। उससे भी हम स्टडी कर सकते हैं अपने पास्ट के बारे में। देन coins, different type of the rulers, they started to issue the different coins made up of the different material। जैसे गुप्ता पीरियड के अगर आप देखोगे तो बड़े अच्छे और आप कह सकते हो प्योर गोल्ड के बने हुए कॉइन्स होते थे। देन वी फाउंड द सिल्वर कॉइन्स एंड देन वी फाउंड द कॉपर कॉइन्स ऑल्सो। तो कॉइन्स में भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, बिकॉज कॉइन्स पे क्या होता है बेटा, इनग्रेव्ड होते हैं। दे आर द पंचमार्क कॉइन्स ऑल्सो, इनग्रेव द पिक्चर फोटो ऑफ देयर रूलर्स, एंड उस पर मेंशन होता है टाइम पीरियड, और इवन द क्वालिटी ऑफ कॉइन्स ऑल्सो टोल्ड अबाउट द रूलिंग, कि भैया उस समय के राजा के पास कितनी ट्रेजरी रही होगी अगर इस तरीके का गोल्ड या सिल्वर या कॉपर का कॉइन यूटिलाइज होता रहा होगा। सो दे ऑल्सो गिव अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द हिस्ट्री। देन जर्नल्स जो होते हैं, लाइक फाइयान जो फर्स्ट चाइनीज थे, बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे, ही ऑल्सो लीव सम इंफॉर्मेशन ऑफ हिज ट्रैवल टू द सेंट्रल एशिया, इंडिया एंड श्रीलंका। तो उन्होंने भी बहुत कुछ लिखा। ह्यून सांग वो भी एक चाइनीज पिलग्रिम थे, इंडिया आए थे। ही ऑल्सो प्रोवाइड द गुड इंफॉर्मेशन ऑफ द रूल ऑफ द हर्षवर्धना एंड द गुप्ता पीरियड, उसके बारे में उन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। दे लेफ्ट अ ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन for us to know about the condition, to know about the ruling in the past of the history। मतलब हमें अपनी इंफॉर्मेशन जो है, अपनी हिस्ट्री की, अपने पास्ट की इंफॉर्मेशन इनसे मिलती है। थैंकफुली द मॉडर्न पीरियड हैज़ मैनी रिसोर्सेज दीज डे। तो आप अपने मॉडर्न टाइम में तो बहुत सारी आपके पास टेक्नोलॉजी है, डेवलप्ड है, तो सफिशिएंट सोर्सेज हैं टू save our memories and due to as much to its proximity to our time as to the invention of printing press। प्रिंटिंग प्रेस आ गई है, बुक्स प्रिंट हो रही हैं आपकी। देन आपके सॉफ्टवेयर भी आजकल डेवलप्ड हो गए हैं। तो वी कैन से, देखो पहले के टाइम पे क्या होता, मेडिवल पीरियड में फरमान आते थे राजा का, सुनो सुनो सुनो, उस पर लिखा होता था फरमान, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर लिखे होते थे। आज के टाइम पे क्या है, टाइप्ड है, प्रिंटेड है, एवरीथिंग आपको मिल जाती है, फोटोग्राफिक एविडेंसेस मिल जाते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे सोर्सेज हैं टू नो अबाउट द हिस्ट्री। दिस मॉन्यूमेंट टेल द स्टोरी ऑफ दैट पीरियड। दे थ्रो द लाइट ऑन आवर पास्ट एंड असिस्ट अस टू गेट अ क्लियर पिक्चर ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड अंडर द स्टडी। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग भी हमें बहुत सारी चीज़ें बताती हैं। देन फॉरेन अगर आप देखोगे सोर्सेज जो हैं, लाइक इंफॉर्मेशन लेफ्ट बाय द यूरोपियन ट्रैवलर्स, पर्टिकुलर्स जो है हेमक्लॉस बर्नियर्स, ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर, बर्नियर ने भी बहुत सारी बातें जो हैं अपने लिखी हैं। देन आपका जो है जीन बैप्टाइस्ट, इन्होंने 6 वॉयजेस की एंड 2 वॉल्यूम्स ट्रैवल इन इंडिया, प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ऐसे लोग भी आए जो घूमने के लिए आए थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हमें दिया है। वन ऑफ मैनी इंस्टांसेस ऑफ इंडिजीनियस लिटरेरी सोर्स इज अबुल फजल्स आईने अकबरी। अबुल फजल ने जो बुक लिखी ना आईने अकबरी, उससे हमें जो है मुग़ल कोर्ट जो उस समय था उसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। गुलबदन बेगम ने वो जो मुग़ल एम्परर हुमायूं सिस्टर जो थे ना, गुलबदन बेगम, उन्होंने मुग़ल एम्परर हुमायूं के बारे में लिखा है फेमस बुक हुमायूं नामा। उसमें सारी डिटेल उन्होंने उस समय की दी है, कैसे हुमायूं रूल करते थे और क्या क्या प्रॉब्लम और या क्या क्या चैलेंजेस उन्होंने फेस किए। तो ओवरऑल वी कैन से वी आर हैविंग different types of sources
to get the information of our past, and in modern time we are blessed with the different technology to save our deeds, our evidences for the future generation as a past incidents. So that's end for the chapter. Let's do the quick revision. So what we have understand in this chapter, the history of modern India started after 1750, after the decline of the Mughal Empire. Then we have discussed the Renaissance period, means the rebirth, where the people started to ask the questioning on the authority. और हमारे मेन फिलोसफर जो हुए लियोनार्डो दा विंसी, जो पेंटर थे, म्यूजिशियन, स्कल्पचर, साइंटिस्ट, बहुत सारे लोग. Then we discussed about the American War of Independence, Industrial Revolution which was started first in the England, first cotton textile mill set up in India, in Kolkata. Then communism was the revolutionary idea of the Karl Marx. Russian Revolution happened under the Lenin in 1917, and the Industrial Revolution influenced the future of world history. That's end for the chapter. I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.